Hello everyone. I'm here today, just bringing you some important things related to your exams. I've segregated some 50 important questions, which comprises most of the case studies only, which will be helpful for you in the exams, right? So I hope you will get these case studies, and if you solve all this, at least you are through with the concepts, most of them, because 50 questions I have segregated from each of the chapter, especially important chapters of companies and such sections which are most of the times being asked by the institute. Okay. So we are not going chapter wise. I have segregated 50 questions as per my own experience, what I have, the analysis which I have done. And based on that, I have segregated some few questions. So we'll begin with some light questions first, and then slowly, steadily, we'll progress to the case studies part as well. Okay. So I hope you have done the proper revision in order to, you know, get these questions correctly, because it will be very good while watching the video if you have answer in your mind prior to what I write. It will be a plus point for you, because you can directly recollect that yes, if this is the question, I know the answer. No matter the lines what you remember, but at least you should remember the concepts. ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोग को लाइन टू लाइन वर्ड याद रहना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, बट अभी जैसे कि तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन ही मैंने रखा हुआ है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में. सो इफ यू नो एनीथिंग अबाउट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इट विल बी वेरी गुड that yes, you can recollect many of the provisions. Okay, so let's start with the first question. We have red herring prospectus. Now what is red herring prospectus? Red herring prospectus is an incomplete prospectus. I hope तुम्हें याद होगा incomplete prospectus क्या तुमने सीखा था. Red herring prospectus में you have learnt incomplete prospectus, right? Because it has got no information in it. No information as in what are the things missing. The things which are missing are वैल्यू ऑफ द शेयर, ये तुम्हारे आंसर में होना चाहिए. प्राइस ऑफ द शेयर, ये भी तुम्हारे आंसर में होना चाहिए, राइट? वंस यू हैव डन विद दिस, राइट, इसके अंदर बिडिंग होगा अगर तुम्हें पता हो तो. दिस कंप्राइजेस ऑफ सेबी कॉन्सेप्ट्स एज वेल, व्हिच इज नोन एज बुक बिल्डिंग. तुम चाहिए तो ये लाइन भी अपना ऐड कर सकते हो इन योर आंसर. बुक बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए. ओके, अपार्ट फ्रॉम बुक बिल्डिंग, जो भी कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करती है उसको 3 दिन पहले, 3 days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ ऑफर, क्या करना होता है? प्रोस्पेक्टस की कॉपी को सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार के पास, राइट? एंड अपॉन क्लोजर, सब कुछ हो जाने के बाद फिर से एक प्रोस्पेक्टस फाइल करना है. फिर से एक प्रोस्पेक्टस फाइल करना है, सो दैट आरओसी गेट्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. और इस प्रोस्पेक्टस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो पहले नहीं थी. इट विल इंक्लूड all information which was not mentioned in the red herring prospectus. Plus I'm writing on the left side, अगर कुछ चेंज किया, चेंज फ्रॉम RHP टू प्रोस्पेक्टस, तो उसको क्या करना है पता है? उसको हाईलाइट किया जाता है. भाई वॉट एवर द चेंजेस यू हैव डन, दैट शुड बी हाईलाइटेड. सो इफ यू गेट क्वेश्चन ऑन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मेक श्योर you write all this provisions in your answer. Okay, so let's move to the next case study. A to Z Management Services Limited is a listed company quoted on Bombay Stock Exchange Limited. The company has decided to close its register for debenture holders. Okay, so देखो जैसे ही तुम लोग इंफॉर्मेशन पढ़ोगे क्लोज्ड इट्स रजिस्टर, अभी ये देखते ही तुम्हारे मन में आंसर रेडी हो जाना चाहिए दैट यस वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 91, क्लोजर ऑफ रजिस्टर्स. क्लोजर ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बात हुई है. लेट्स रीड द क्वेश्चंस फर्दर. जैसे कि जून और अगस्त 2 महीनों में इन लोग ने क्लोज करने के रिलेटेड सोचा है. सो जून में इन लोग ने 12 दिन एंड अगस्त में इन लोग ने 21 डेज. सीएफओ ने क्या बोला? दैट सेक्रेटरी कंसिडर क्लोजिंग द रजिस्टर फॉर अनदर 15 डेज. तो देखो यहाँ पे द रजिस्टर वाज ऑलरेडी क्लोज्ड फॉर 12 डेज, रजिस्टर वाज ऑलरेडी क्लोज्ड फॉर 21 डेज. सो 12 प्लस 21 वी हैव 33 डेज का तो क्लोजर ऑलरेडी हो चुका है, राइट? ऐसे रफली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सो दैट इफ यू आर वीक इन मैथ्स यू कैन डू इट.
बट सेक्रेटरी को बोला गया है कि भाई इन द मंथ ऑफ दिसंबर और 15 दिन के लिए क्लोज करना है। सो अगर मैं और 15 दिन के लिए क्लोज करूंगा तो टोटल डेज हो जाएगा 48। यहां पे तुम लोग को क्लिक हो जाना चाहिए कि लोचा है, बिकॉज इफ यू नो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 91 जो कहता है रजिस्टर कैन बी क्लोज्ड फॉर मैक्सिमम 45 days in a year। तो देखो, अगर जो यहां पे बोला गया है कि भाई और 15 दिन के लिए क्लोज करना है, किसने बोला है? सीएफओ ने। सो योर फाइनल कंक्लूजन विल बी CFO's proposal is wrong। ठीक है भाई, ये 15 दिन के लिए क्लोज नहीं कर सकते, इट इज इनवैलिड, राइट? एक्शन विल बी इनवैलिड। अगर क्लोज किया ना तो इट विल बी इनवैलिड, राइट? सो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टडी, यू नो, इफ यू रीड द क्वेश्चन लगता डिफिकल्ट है, बट एक बार अगर तुम्हारे प्रोविजंस क्लियर रहेंगे ना तो इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। बहुत ही इजी हो जाएगा कंपनी लॉ का पेपर सॉल्व करना। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन प्रोस्पेक्टस जैसा मुझे कुछ दिख रहा है, राइट? नाउ सी, ऑन रिसीट ऑफ 85% ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला है, प्रोस्पेक्टस है, लिटिल स्टार्स लिमिटेड है पब्लिक कंपनी, राइट? अलॉटेड 200 shares to Ranjit and money was deposited in a scheduled bank account. Later on it was revealed that 40% of the amount was withdrawn for the acquisition of fixed assets for the company. Ranjit, knowing these facts, refused to accept the allotment, considering allotment was irregular. अभी यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ अलॉटमेंट। एक अगर प्रिंसिपल्स ऑफ अलॉटमेंट कंसिडर करोगे, राइट, सो एक चीज तो सबसे पहले तो 85% आया, तो ये 85 नहीं होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन 90%, राइट? 90% अगर नहीं आता है तो नॉर्मली क्या करना पड़ता है? रिफंड करना चाहिए था। बट क्या कंपनी ने रिफंड किया? नहीं, राइट? इट वाज रिवील्ड दैट 40% ऑफ द अमाउंट वाज विड्रॉन बाय द कंपनी। भाई कैसे चलेगा? क्या अंडरराइटर को बुलाया? नहीं। सो यहाँ पे जो रंजीत है, रंजीत, इज ही करेक्ट दैट हिज रिफ्यूजल इज करेक्ट? यस, रंजीत इज करेक्ट। केस कर सकता है वो कंपनी के ऊपर एंड द पेनल्टी विल बी चार्ज्ड। रंजीत इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि एज पर द लॉ अमाउंट रिफंड होना चाहिए था इन 15 डेज। याद है कि नहीं तुम लोग को? यार सेक्शन 39 में हमने यही सीखा था कि भाई अमाउंट शुड बी रिफंडेड। अगर रिफंड नहीं किया 15 दिनों में तो पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ लगता है, यू नो, यू नीड टू पे द इंटरेस्ट, राइट? ठीक है, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। वेरी स्वीट क्वेश्चन ऑन सेक्शन 39। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन we have is confident limited। again see, limited matlab I can see it is a public company, right? confident limited has forfeited 50,000 shares, okay, koi baat nahi, at rupees 10 each, and the same were reissued after filing the return, right? After filing the return, ROC of the company has issued a show cause notice for default in provisions of section 39। क्यों? आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न। नाउ सी, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न। ये रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए था। क्यों पता है क्या? क्योंकि अपना जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है, राइट, इन दिस चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल, उस चैप्टर में लास्ट में, इफ यू सी माय नोट्स, आई हैव गिवन सम केस स्टडीज, राइट? Now I want you to mention the name of the case study in the comments, because मैं आंसर दूंगा तो फायदा क्या है? I want you to remember the case studies. So I'm not going to tell you the name, main thing, right? But I will tell you the provision कि अगर तुम्हें याद हो, मैंने सिखाया था तुम लोग को कि जब भी री इश्यू करते हैं फोरफिटेड शेयर्स को, तो लॉ बोलता है फाइल, सॉरी, लॉ बोलता है filing return of allotment is not required।
फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा स्ट्रेट अवे लॉ ने बोल दिया है, सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये था अपना एक क्वेश्चन नंबर 4, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हारे मन में आंसर्स रेडी होने चाहिए, राइट। 1,000 shares of Astro Limited are registered in the name of 3 persons, POR, jointly। तो चलो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि here we are talking about joint shareholders या joint members की बात हो रही है। Okay. Interestingly, articles provide that all the survivors shall be the person to be recognized by the company having any title to the shares. Unfortunately, जरा spelling mistake है यहाँ पे, unfortunately there is a spelling mistake in unfortunately. P and O died in the air crash. In these circumstances, R is the survivor, claims to be full owner of the said shares. However, the legal heirs of P and O are also making counter claims. Who will succeed? Now see, ये main चीज है यहाँ पे articles. If you see, ये जो articles यहाँ पर है, this is very important. क्योंकि अगर आर्टिकल्स में लिख दिया है तो वी हैव टू कंसिडर गिविंग द प्रायोरिटी टू द आर्टिकल्स, राइट। अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रायोरिटी किसको देना है? आर्टिकल्स को ही देना है। अगर देखो, अगर आर्टिकल साइलेंट होता ना तो मैं क्या बोलता पता है? द एज पर द लॉ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ऑल शेयर्स ऑफ जॉइंट होल्डर्स विल रेस्ट in the hands of the survivor। लेकिन अगर आर्टिकल्स में रूल बना के रखा है, सो देयर क्लेम्स विल बी वैलिड, राइट। ऑलवेज आर्टिकल्स को प्रायोरिटी दी जाती है, ओके, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन applied for 4,000 shares, okay, 4,000 shares in the company, but allotment was not made to him। okay, allotment नहीं हुआ, whatever reasons, कंपनी उसको allot नहीं कर पाई, okay, allotment was not made। तो यहाँ पे हम लोग हाईलाइट कर देंगे नो allotment। subsequently 4,000 shares were transferred। देखो, अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो उसको ट्रांसफर कैसे हुए? विदाउट हिज रिक्वेस्ट, एंड हिज नेम वाज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स। नाउ इधर मोहन खुश होने लगा, अरे मेरे को तो कंपनी का लेटर आया था कि सॉरी वी कैन नॉट अलॉट यू द शेयर्स, द मनी विल बी रिफंडेड, राइट। सो ये कैसे हो गया? जब मुझे शेयर्स नहीं मिलने चाहिए थे तो शेयर्स मिले कैसे? यहाँ पे जो मोहन है, मोहन, व्हाट ही डिड इज, इफ यू रिमेंबर दिस चैप्टर ऑफ मेंबरशिप, हियर मोहन हैज अलाउड, तो ही अलाउज हिज नेम टू बी on the register of members without sufficient cause। और इस केस में वो मेंबर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? यस, ही विल बी कंसिडर्ड एज मेंबर बाय एस्टॉपल। मींस अभी वो मेंबरशिप मना नहीं कर सकता, राइट। क्यों? क्योंकि देखो, मोहन टुक नो स्टेप्स टू डू द रेक्टिफिकेशन। Subsequently, company went into liquidation and he was held liable as a contributory। Now Mohan wants to apply to the rectification। तो मेन चीज है, क्या ये रेक्टिफाई कर सकता है क्या? नहीं, he cannot do so। भाई ऐसा थोड़ी है, क्या तेरा सब कुछ चलेगा क्या? तेरे को लग रहा था तेरा फायदा हो रहा है तो तूने अपना नाम रख दिया, एंड अगर आज तेरे पे लायबिलिटी आया है तो ऑन द अदर साइड यू आर सेइंग कि नो नो आई वांट टू रेक्टिफाई द रजिस्टर, अब नहीं चलेगा। नाउ सिंस यू आर मेंबर बाय एस्टॉपल, मींस नाउ यू हैव टू do what? You have to do only one thing, accept the liability arising under liquidation, okay।
सो लायबिलिटी अराइजिंग अंडर लिक्विडेशन, यहाँ पे जो भी लायबिलिटी आएगा उस मेंबर का वो उसे बेयर करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, सो that was the question number 6. Now let's move on to the next question. Question number 7. Fun and Frolic Limited has received rupees 5 lakhs from its promoters. Okay, this question is based on the chapter deposits. Actually chapter नहीं है, chapter का नाम debt capital है, but debt capital के अंदर दो पार्ट है, if you know debentures and deposits. तो देखो 5 लाख रुपया प्रमोटर ने दिया as an unsecured loan, which was a stipulation to credit facilities of the bank. Can company accept unsecured loan? सबसे पहला question है, the answer is yes, company can take unsecured loan. What would be your answer if the company has repaid, right? Company has repaid the full amount of credit facility, and after such repayment the company continues the unsecured loan. अभी यहाँ पे क्या हुआ, I'll tell you. देखो मैं तुम लोगों को सिंपल एग्जांपल देता हूँ. Let's assume ये जो पैसा दिया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ amount is received by कंपनी. अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, किसके पास से? फ्रॉम प्रमोटर. अभी प्रमोटर ने पैसा क्यों दिया? बिकॉज देयर वाज अ स्टिप्यूलेशन. स्टिप्यूलेशन नहीं समझता तो देसी भाषा में कंडीशन डाला था, किसने? बाय क्रेडिटर. यहां पे क्रेडिटर है बैंक, ठीक है, तो बैंक ही लिख देते. बोला कि भाई तेरे को पैसा चाहिए लोन का तो मैं दूंगा, राइट, लेकिन पहले तू 5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करेगा. तो यहाँ पे प्रमोटर ने कितना रुपया कंट्रीब्यूट किया है? 5 lakhs. ओके, प्रमोटर हैज कंट्रीब्यूटेड 5 lakhs. सो दिस इज गिवन बाय द प्रमोटर. नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन अगेन, कैन द अमाउंट बी एक्सेप्टेड? द आंसर इज यस. पहला तो यस हो गया, कोई टेंशन नहीं, अमाउंट भी एक्सेप्टेड, कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, उसको यस करके खत्म कर दो. मेन है ना यहाँ से ये पॉइंट से, व्हाट वुड बी योर आंसर? What would be your answer if the company has repaid the full amount of credit facility after the such repayment and company continues with the unsecured loan? So अगर कंपनी ने, here ध्यान देना, if company, ये फाइनल आंसर मैं दे रहा हूं, ठीक है, has repaid what amount of loan to bank, जो बैंक से पैसा लिया था वो लौटा दिया, एंड स्टिल अमाउंट बोरोड फ्रॉम प्रमोटर इज विद द कंपनी. तो ऐसे सिचुएशन में ये पैसे को क्या माना जाएगा पता है? दिस मनी विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट. ठीक है, इन दिस केस सच अमाउंट, कौन सा अमाउंट? वो 5 लाख रुपया जो प्रमोटर ने दिया था, विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट. ओके, विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, राइट. सो इट विल बी यूजफुल. अगर तुमने वो डिपॉजिट के 18 पॉइंट के डेफिनेशन पढ़े होंगे तो इसके रिलेटेड सी ये क्वेश्चन ऐसा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पूछा जाता है डिपॉजिट्स के ऊपर कि भाई कौन सा पैसा डिपॉजिट माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा. सो यू विल फाइंड नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट ओनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आएंगे आगे, मैंने ऐड किए हुए, आई हैव एडेड सच क्वेश्चंस एज वेल, तुम लोग को दिखेंगे. बट यहाँ पे फिलहाल अपने पास एक अगला क्वेश्चन भी है, दैट Prism Limited has accepted 10 lakhs as an advance towards supply of goods to certain parties. Okay. प्रिज्म लिमिटेड करके कंपनी है, उसने 10 लाख रुपया ले लिया पार्टीज के पास से, बोला एडवांस. भाई इसको ध्यान में रखना, इसको, किसको? तो एडवांस को. कहा गया एडवांस? ये रहा, दिस वर्ड एडवांस. डोंट फॉरगेट दिस वर्ड फॉर अ व्हाइल, ठीक है, काम आएगा, राइट. प्रिज्म लिमिटेड ने एडवांस लिया, किससे? गुड्स सप्लाई. नाउ द एग्रीमेंट बोला कि भाई जो एडवांस लिया ना, हम लोग आपको 2 साल के बाद सामान प्रोवाइड करेंगे. जो पैसा कंपनी ने डिपॉजिट किया इधर, राइट, ये रहा डिपॉजिट. ये डिपॉजिट करने के बाद 2 साल के बाद द अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड. सो हियर इफ यू नो, ये भी डिपॉजिट का ही क्वेश्चन है. ओके,
इंटरनल ऑडिटर बोलता है कि भाई कंपनी हैज वायोलेटेड द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर्स एक्सप्लेन दैट दिस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑर्डर, एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन। नाउ डायरेक्टर का देखो पहले बोलता हूँ डायरेक्टर का करेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, डायरेक्टर्स आर रॉन्ग। ओके, डायरेक्टर्स आर रॉन्ग। नाउ आई विल टेल यू व्हाई। अगर तुम लोग डिपॉजिट्स का पार्ट पढ़ोगे, सो वो लॉ क्या बोलता है, एनी एडवांस टेकन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो इस केस में डिलीवर इट इन हाउ मेनी डेज पता है, 365 डेज का टाइम दिया गया है। एंड यहां पे देखो जनाब 2 साल बोल दिया, 2 साल बाद देंगे, चलेगा क्या? नहीं, 2 साल बाद नहीं चलेगा। मैक्स टू मैक्स तुम्हें 365 डेज के अंदर ये गुड्स प्रोवाइड कर देने चाहिए थे, वरना रिफंड कर देना चाहिए था। रिफंड इन और अगर तुमने डिलीवर भी नहीं किया, रिफंड भी नहीं किया, एक्चुअली रिफंड आफ्टर 365 डेज कर देना, ठीक है, क्योंकि 366 डे से ये पैसा कंपनी के लिए क्या माना जाएगा पता है, डिपॉजिट बन जाएगा। देन दिस मनी, ये एडवांस, देयरफॉर एडवांस विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट फॉर द कंपनी। तो ये एडवांस भी कंपनी के लिए क्या माना जाएगा, डिपॉजिट माना जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, बट बड़ा दिखने में है, इट इज वेरी स्मॉल। ओके, comment on the following provisions whether the amounts will be considered as deposit or not, ठीक है। so I need your answer, right? see, 5 lakhs raised by Rohit Limited through issue of non convertible debentures not constituting a charge। तो देखो non convertible है डिबेंचर एंड नॉट कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज, ठीक है, नॉट कंस्टिट्यूटिंग अ charge on the assets of the company and they are listed on stock exchange। now if you have again read this point, answer number 1 is not a deposit। इसके लिए तुम लोग को वो 18 पॉइंट्स याद होने चाहिए जो मैंने सिखाए थे। ओके, नेक्स्ट, 2 lakhs is received from by Rishi Limited from its employee Mr. तरुण, ठीक है, मिस्टर तरुण ने पैसा दिया, नो प्रॉब्लम, who draws annual salary of 1.5 लाख रुपया। इधर ही मैटर ओवर हो गया भाई। एक एम्प्लॉय अगर अपनी सैलरी से ज्यादा पैसा देता है तो सेकेंड आंसर इज अ डिपॉजिट फॉर द कंपनी। अगर 2 लाख जितना देता, राइट, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग तो है, चलो माना नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है, लेकिन अमाउंट कितना दे दिया, 2 लाख रुपया दे दिया, जबकि उसका एनुअल सैलरी कितना है, खाली 1.5 लाख रुपए का। सो इफ यू नो द प्रोविजन जो क्या बोलता है कि अगर कोई भी डायरेक्टर, सॉरी नॉट कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एम्प्लॉय अपने कंपनी को पैसा देता है विच इज एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, तो फिर वो डिपॉजिट माना जाता है। हाँ, अप टू एनुअल सैलरी दिया होता तो वो डिपॉजिट नहीं माना जाता। ओके, सॉरी, थर्ड वन, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। अभी अभी जो मैंने बोला था, promoters of green contributed in the form of unsecured loan fulfill the margin requirements whereby money of promoter is still outstanding। अभी ऊपर एक सेम क्वेश्चन हमने किया था, राइट, दिस इज डिपॉजिट अगेन, क्योंकि अगर लेंडर का पैसा दे दिया और प्रमोटर का पैसा अभी भी कंपनी के पास है, देखो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग, रीपेमेंट इज पेंडिंग, ठीक है, रीपेमेंट इज पेंडिंग। सो अगर रीपेमेंट पेंडिंग है तो भाई नहीं चलेगा, दिस मनी विल नाउ बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 10। यू सी, so many case studies I have included, right? In the description, PDF will also be attached, or else the link will be given in the pinned comment as per the situation. You check it out। ये questions को तुम लोग PDF का प्रिंट आउट लेके सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो whenever you have done, okay, right? Now see, again last question I think so on deposit होगा, next question नहीं होगा। yes, this is the last one because most of the times जो deposits के ऊपर question आया है वो इसी तरीके का आया है। so now again there are 3 situations, number 1 2 3 we need to see कि भाई ये जो पैसा है ये deposit है कि नहीं है। okay, so one by one let's see।
भूपेंद्र इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ओके ऑफ मून टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है कोई बात नहीं. रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड पारस टू lend to the company 20 lakhs in a single tranche. ट्रांच का मतलब क्या होता है? पोर्शन, एक शॉट, हम लोग बोलते हैं ना वन शॉट पेमेंट, वैसा 20 lakhs by way of single tranche by convertible note within repayable within 6 years. सब बराबर है. ये है ना, ये इधर गड़बड़ है, ये गड़बड़ है इधर. ये गड़बड़ क्यों है पता है क्या? अगर ये 20 लाख नहीं होता ना, 20 लाख नहीं होता इन द सेंस 25 लाख होता ना, तो आंसर चेंज हो जाता. बट क्योंकि यहाँ पे 20 लाख है, सो माय आंसर इज सच अमाउंट इज डिपॉजिट. व्हाई सच अमाउंट इज डिपॉजिट? क्योंकि ये पॉइंट बोलता है कि अगर किसी से पैसा ले रहे हो फ्रॉम अ पर्सन, फ्रेंड है तो क्या हुआ, लॉ बोलता है फ्रॉम अ पर्सन लिया कितना, 25 lakhs और मोर इन सिंगल ट्रांच, then that money will be treated as deposit. Sorry, will not be treated as deposit. But यहाँ पे तो क्या कर दिया है, 20 लाख ही लिया है, then this money will be treated as deposit. Okay. Second point we have is Shri Ram Ready-Made Garments Limited. Okay, wants to accept deposits of 50 lakhs from its members for a tenure which is less than 6 months. Is it possible to do so? Yes, it is possible. Less than, देखो नॉर्मल पीरियड अगर तुम्हें पता हो तो मैं नंबर 2 यहां पे लिखता हूं. मिनिमम एक्सेप्टेंस कितना होना चाहिए था और मैक्सिमम एक्सेप्टेंस कितना होना चाहिए था. वेरी गुड, तुमने मन में बोल दिया. आई एम वेरी हैप्पी. तुम्हारी मन की बातें मुझे सुनाई दे जाती है. मिनिमम 6 मंथ्स होता है, मैक्सिमम 36 मंथ्स होता है. लेकिन लेस देन 6 अगर तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो अलाउड है क्या? द आंसर इज यस. ठीक है, बट एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए तो होल्ड करना ही पड़ेगा. नाउ इसमें वन मोर पॉइंट होता है, मैक्सिमम तुम एक्सेप्ट कितना कर सकते हो? 10%. 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज, प्रीमियम. इससे ज्यादा तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. बट सिंस वी डोंट हैव सच क्वेश्चन, सॉरी वी डोंट हैव सच इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन. कौन सा इंफॉर्मेशन कि पेड अप शेयर कैपिटल कितना है या फिर फ्री रिजर्व्स कितना है. सो टेक्निकली लेट्स अवॉइड द पार्ट ऑफ दिस 10%. जरूरत नहीं है फिलहाल, आंसर में जरूरत नहीं है. सो क्या द मेन क्वेश्चन, क्या लेस देन 6 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है? द आंसर इज यस, यू कैन एक्सेप्ट द अमाउंट फॉर 3 मंथ्स एज वेल. तो सेकंड वाले का आंसर हो गया यस. थर्ड वन क्या है? द टर्नओवर ऑफ वाई लिमिटेड इज 400 crores एज पर द लास्ट ऑडिटेड स्टेटमेंट एंड नेटवर्थ इज 50 crores. कैन वाई लिमिटेड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक? कैन वाई लिमिटेड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक? पब्लिक से पैसा ले सकती है क्या? नाउ इफ यू नो, फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक देयर वाज अ कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया था तुम लोग को, जिसका नाम था एलिजिबल पब्लिक कंपनी. अंडर सेक्शन कौन सा आता था? 76. एलिजिबल पब्लिक कंपनी किसको बोलते थे? जिसका नेटवर्थ इज ₹100 crores और मोर, या तो टर्नओवर इज ₹500 crores और मोर. नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे ये कंपनी एलिजिबल कंपनी है ही नहीं, राइट? टर्नओवर 400 करोड़ है, नेटवर्थ 50 करोड़ है. सो नन ऑफ द क्राइटेरिया इज बीइंग फुलफिल्ड. हेंस दिस कंपनी, कैन दिस कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक? राइट, द आंसर इज नो. दिस कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. यहाँ पे सेक्शन 76 आएगा. ओके, so the answer is no. Company cannot accept deposit from public. ठीक है, you cannot accept deposit from public. तो ये है अपना फाइनल आंसर. ओके, सो मैंने तीनों के आंसर लिख दिए. इफ यू सी क्वेश्चन नंबर, भूपेंद्र 20 लाख रुपया नहीं 25 लाख होता तो नॉट अ डिपॉजिट होता, बट ये 20 लाख है, देन दिस अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट. राइट, ठीक है. So let's move on to the next question. Preservation of books मुझे पहले ही दिख गया है यहाँ पे. प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, तो जैसे ही प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स होता है तो 8 साल वगैरह तुम्हारे मन में क्लिक होना चाहिए. बट लेट्स रीड द क्वेश्चन. ऐसे डायरेक्टली तो हम जज कर नहीं सकते. ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनिल लिमिटेड हैज डिसाइडेड नॉट टू प्रिजर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर अनदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स फॉर मोर देन 5 years. देखो मैंने पहले ही बोला ना, जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजर्वेशन आया तो मन में 8 साल होना चाहिए. अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, बोले 5 साल.
इधर ही गड़बड़ कर दी इन लोग ने, बट लेट्स रीड फर्दर. Immediately preceding the relevant year 1617 due to shortage of space. Examine the validity of the board decision. Invalid. मैं पहले ही आंसर तुमको बता देता हूं ताकि तुम लोग को सोचने में इजी हो. Invalid. Why? Because section 128 में क्या बोला है? Preservation at least 8 financial years is required. यहां पे तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, 5 साल में डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो ये इनका इंटेंशन या इनका जो भी कंटेंशन वगैरह है, क्या ये करेक्ट माना जाएगा? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल. ठीक है, यू कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ वैलिड डिसीजन, क्योंकि 5 साल अलाउड ही नहीं है. सेक्शन 128 में क्लियर कट बोला गया है कि द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी केप्ट प्रिजर्व्ड फॉर एटलीस्ट 5 years. एंड इफ आई एड फर्दर more than books of account should be preserved for 8 years, and if I add further इसमें लाइफ टाइम के लिए मतलब more than 8 भी प्रिजर्व करना पड़ेगा. more than 8 years preservation. कब? if ordered by कौन सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, if it is ordered by central government, so it will be preserved for more than 8 years. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CIF टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर. राइट, वी हैव अ क्वेश्चन ऑन CIF टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कहता है इनकॉर्पोरेटेड इन भुवनेश्वर ओडिशा. कंपनी विल बी होल्डिंग CIF प्राइवेट लिमिटेड which is incorporated in Brazil. Okay, no problem. Now company in Brazil follows financial year from 1st January to 31st December. रेफरिंग टू द प्रोविजंस, क्या तुम अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो? यस, यू कैन चेंज, बट अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. ओके, यू नीड टू फाइल एन एप्लीकेशन टू किसको? रीजनल डायरेक्टर. ठीक है, यू नीड टू फाइल एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर. और रीजनल डायरेक्टर आया तो इनफॉर्म RD1 में तुम्हें सबमिट करना है along with necessary documents. तुम रीड करोगे, तुम्हारे प्रोविजंस अपने सिलेबस के अंदर तुम्हें मिल जाएगा कि I have attached some of the documents, means I have mentioned the list of documents. right, अगर कुछ गड़बड़ निकलती है तो तुम रीसबमिट भी कर सकते हो. रीसबमिशन अलाउड. राइट, लेकिन रीसबमिशन के प्रोविजन क्या है? तो इसमें 3 चीजें याद रखनी है. फॉर्म चेंज हो जाएगा RDGNL 5. ठीक है, रीसबमिशन अलाउड कितनी बार है? ट्वाइस अलाउड है. एंड सबमिशन का टाइम पीरियड कितना होता है? 15 डेज में तुम्हें फॉर्म रीसबमिट कर देना है. जैसे ही रजिस्ट्रार RD बोलेगा कि भाई फॉर्म में गड़बड़ है, 15 दिन में रिटर्न फाइल कर देना है, रीसबमिट कर देना है. रीसबमिशन के लिए आई हैव टोल्ड यू द फॉर्म RDGNL 5. फिर सब कुछ होने के बाद RD के पास 30 दिन का टाइम है. या तो वो तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ द ईयर को अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा. अगर कुछ नहीं किया, इफ नो ऑर्डर बाय RD, कितने दिन में? 30 दिन में, तो ऐसा समझना इट इज डीम्ड अप्रूव्ड. तो RD के ऊपर भी प्रेशर है कि भाई जो भी उसको ऑर्डर देना है ना, वो कितने दिन में देना है? 30 दिन में दे देना है. सो अगर RD 30 दिन में रिवर्ट नहीं करता तो उसके ऑर्डर को क्या माना जाएगा? डीम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा. ओके, ठीक है. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन. राइट, काम में आएगा जो भी है वो. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राम इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, ठीक है, ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन आ गया ये. राम इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट and a partner of 2 audit firms. Okay, no problem. Ram is a practicing CA. 2 audit firm में partner, namely PYMG and YE Limited. So यहाँ पे let's have a information. Ram auditor, PYMG or YE. PYMG has completed its 2 terms. Okay, no problem. In Gayatri Limited, having paid up share capital of 60 crores. So now Gayatri Limited is considering appointing YE Limited. YE Limited. Now see,
वाई इज अ, एक्चुअली यहाँ पे पार्टनर लिखता हूं मैं, ऑडिटर नहीं, यहाँ पे मैं पार्टनर लिखता हूं. सो राम इज अ पार्टनर वाई ई लिमिटेड. सो ये कॉन्सेप्ट पता चल गया तुम लोग को कौन सा है, कॉमन पार्टनर का कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पार्टनर, राइट. वाई ई लिमिटेड, राइट, और पी वाई एम जी दोनों ही फर्म है, राइट. दोनों फर्म में पार्टनर है मिस्टर राम. तो राम बन गया अपना कॉमन पार्टनर, मिस्टर राम बन गए कॉमन पार्टनर. नाउ देयर इज अनदर कंपनी गायत्री प्राइवेट लिमिटेड में, माइंड यू, जिसका इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 60 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल दी दे. इसका मतलब क्या पता है? रोटेशन इज एप्लीकेबल. ठीक है, रोटेशन इज एप्लीकेबल. नाउ देखो ध्यान से. नाउ गायत्री लिमिटेड इज कंसिडरिंग वाई फर्म को अपॉइंट करना एज इट स्टैट्यूटरी ऑडिट. देखो पीवाईएमजी को तो कर ही नहीं सकते क्योंकि पीवाईएमजी के 2 टर्म ओवर. सो उसको तो क्या लग जाएगा? कूलिंग पीरियड लग जाएगा. ठीक है, कूलिंग पीरियड लग जाएगा. कितने साल का? 5 साल का. बट इफ यू सी, जो वाई फर्म है जिसको ये फिर से नहीं, मतलब अब अपॉइंट करना चाहती है, उसमें भी अपने राम है, मिस्टर राम, द चार्टर्ड अकाउंटेंट, द ऑडिटर. तो मिस्टर राम कौन है? कॉमन पार्टनर है. नाउ इसके वजह से क्या हो गया कि मिस्टर राम क्यों कॉमन पार्टनर है, तो वाई को भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा. कितने साल का? 5 साल का. ठीक है, वाई लिमिटेड को भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा 5 साल का, राइट. ठीक है, so that kind of questions are also there in your provisions, but there will be 2 questions. What will be the answer in the following cases? If appointing company is OPC, if appointing company is small company, तो इन दोनों कंपनी में the answer is going to be the same. YE can be appointed. क्यों? नीचे मैंने अपॉइंट नहीं करवाया, इनके लिए अपॉइंट करवाया. अगर तुम्हें याद हो तो इन लोग को रोटेशन अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा. रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स विल नॉट अप्लाई. अगर रोटेशन ऑफ ऑडिटर अप्लाई नहीं होगा ओपीसी को एंड स्मॉल कंपनी को, सो दे कैन अपॉइंट द ऑडिटर विदाउट हैविंग एनी कूलिंग पीरियड. मींस अगर फर्म है, फर्म, सो इफ यू नो द लॉ, एक फर्म को हम लोग जब अपॉइंट करते हैं तो जिसको रोटेशन एप्लीकेबल उसको 2 टर्म्स अलाउड है 5 इयर्स के, एंड इंडिविजुअल के केस में 1 टर्म अलाउड है 5 इयर्स का. फिर इनको लग जाता है कूलिंग पीरियड. बट अगर तुम ओपीसी या स्मॉल कंपनी हो तो तुम्हें रोटेशन तो एप्लीकेबल है ही नहीं. अगर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे? सेम ऑडिटर को फिर से अपॉइंट कर सकते हो. यस, दैट इज द रीजन व्हाई ई कैन बी अपॉइंटेड. वाई फर्म जो है इट कैन बी अपॉइंटेड, राइट, क्योंकि उनको रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, राइट. चलो नेक्स्ट. SKS Limited issued redeemable preference shares. Okay, SKS Limited issued redeemable preference shares of 8%, 1,50,000 redeemable preference share at rupees 100 each by May 2010, which are liable to be redeemed within a period of 10 years. Due to COVID-19, company is not in a position to redeem the preference shares nor to pay dividend. Not to pay dividend as per the terms of issue. The company with the consent of redeemable preference shareholders of 70% in value. बस मिल गया मुझे पॉइंट जो मैं ढूंढ रहा था. अगर मैं मैं स्टूडेंट होता तो मैं इसी को ढूंढता, राइट. आई गॉट व्हाट आई वांटेड, 70% इन वैल्यू. अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें सिखाया था कि व्हेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम, वो लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ही अप्रूवल लेके फर्दर इश्यू कर सकते प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ताकि पैसा आएगा और वो पैसों से पुराने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे. बट प्रॉब्लम क्या है इधर? ये 70%. अगर ये 70% की जगह 75 होता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. बट क्योंकि यहाँ पे 70% दिया है, पेटिशन करने का भी कोई फायदा नहीं है. विल द पेटिशन बी अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल? द आंसर इज नो. व्हाई इट विल नॉट बी अप्रूव्ड? हियर इज द रीजन. क्योंकि scheme not scheme actually, the approval should have been received from 75% of preference shareholders in value. ठीक है, मतलब इतने परसेंटेज जिसके पास होल्डिंग हो गए, 75% ऑफ टोटल प्रेफरेंस शेयर्स, राइट. जैसे कि 1,50,000 शेयर्स थे, बराबर. इसको 100 रुपए के भाव से बेचा तो 15 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर होते हैं. अभी 15 करोड़ का
तुम लोग 75% करोगे तो मेरा मैथ्स तो बहुत वीक है, बट येट आई होप आई विल गेट द राइट आंसर. $1125 probably, इतना तो होना ही चाहिए. Let me use a technology. The reason why I cannot do chartered accountant is this only. हाँ, it is right, 1125 crore. अरे कर लेता यार, हो जाता. राइट आ रहा है आंसर. चलो कोई बात नहीं. सो देखो, इतने उतने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चाहिए मुझे जिनका होल्डिंग 11 करोड़ 25 लाख रुपए का है. 11 करोड़ 25 लाख रुपए का है. अगर सपोज इतना परसेंटेज 40 लोगों के पास है तो मुझे आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 40 लोगों का अप्रूवल चाहिए. 40 लोगों का अप्रूवल मतलब 3/4 इन वैल्यू, दैट इज 75% इन वैल्यू का अप्रूवल मुझे मिल गया. फिर एनसीएलटी मुझे अप्रूवल दे सकता है एंड देन मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को री इश्यू कर सकता हूं. ओके, सो दैट वाज अ बिग ट्रिकी क्वेश्चन. लेकिन तुम्हें प्रोविजंस अगर पता है, सो इट वाज नॉट एट ऑल ट्रिकी, इट वाज वेरी इजी. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी आर डूइंग might be asked in the exams as well because provisions मिलते जुलते होते हैं. तो I'm not saying ये अटेम्प्ट में कि अगले अटेम्प्ट में, बट कभी ना कभी तो पूछे जाएंगे ही, या क्या पता पूछे भी गए हो. राइट, ठीक है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्रोग्रेसिव लिमिटेड, ठीक है, wants to issue equity shares. ओके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इक्विटी शेयर तो इश्यू करना चाहिए. बट ये रहा भेदभाव, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं. ठीक है. So examining the provisions of Companies Act 2000, state the conditions to be complied. Now this is not a case study, straight question है ये. ऐसा नहीं कि सारी केस स्टडीज की ही प्रैक्टिस करनी है. कुछ फ्यू स्ट्रेट क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हुए, सो दैट तुम लोग को ये सारे शेयर्स वाले चैप्टर में से आया है. ओके, Board of Directors of Progressive Limited decided to issue equity shares of the company with differential voting rights. Now, differential voting rights की, if you remember, 7 conditions थी total. To issue DVR, 7 conditions are to be fulfilled. एक थी चेक AOA आर्टिकल्स में ऑथराइज्ड है कि नहीं, ठीक है, वो चेक करनी है. दूसरी थी पास ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. तीसरा था मैक्सिमम डीवीआर कितना हो सकता है, 74%. ओके, एंड बाकी के जो 4 कंडीशन थे 4, 5, 6, 7, ये सब के सब डिफॉल्ट के कंडीशंस थे. डिफॉल्ट अंडर दिस, डिफॉल्ट अंडर दैट, डिफॉल्ट इन दिस एंड पेनलाइज्ड बाय अंडर एनी लॉ. मैं ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि कंडीशंस का स्ट्रेट क्वेश्चन होता है. सो यू कैन रेफर योर नोट्स एज वेल. यू विल फाइंड दिस 7 कंडीशंस इन योर आंसर्स एज वेल. ओके, सो इफ यू वांट टू इश्यू द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट अगर देखोगे तो डिविडेंड वगैरह था, एंड यहाँ पे भी लोन एंड ऑल था, यहाँ पे वो मेकिंग गुड द डिफॉल्ट वाला प्रोविजन था. सो देयर वेर फ्यू डिफॉल्ट्स जो अपने 7 कंडीशंस में आते थे, एंड इफ यू फुलफिल ऑल द कंडीशंस देन ओनली you can issue equity shares with differential voting rights. So मैं यहाँ पे randomly लिख देता हूँ plus other conditions with respect to default. ठीक है, other conditions with respect to default. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं. संतोष कुमार इज एन एम्प्लॉय ऑफ लिस्टेड कंपनी, परचेस्ड सर्टन शेयर्स. ओके, कोई बात नहीं, संतोष कुमार एम्प्लॉय ऑफ लिस्टेड कंपनी है.
he purchased certain shares, right, of his company through stock exchange. कोई बात नहीं, कंपनी को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन किया, but company refused to execute the transfer on a suspicious that he is an employee. If admitted, he will create nuisance, seek excess वगैरह वगैरह. Is the company's contention tenable? No, it is not. गलत है ये. एक केस था अपना निर्मल, मिस्टर निर्मल का एक केस है. इफ यू सी, मैंने नोट्स में मैं हमेशा इंक्लूड करता हूँ. ओके, मिस्टर निर्मल का केस है, मुझे फुल नेम रिकलेक्ट नहीं हो पा रहा, बट यू विल फाइंड दिस तुम्हारे, इवन इफ यू वेरेवर यू हैव यूज्ड स्टडी मटेरियल्स. जो कंटेंशन यहाँ पर है कि भाई तू एम्प्लॉई है मेरा, अगर तू शेयर होल्डर बनेगा तो तू दुनिया भर के सवाल करेगा. ये जो रीजन था ना, रीजन ऑफ रिजेक्शन, रीजन ऑफ रिजेक्शन जो यहाँ पे दिया है, दिस इज नॉट वैलिड या नॉट टेनेबल एज पर द लॉ. जो यहाँ पे क्वेश्चन, ये चलेगा क्या, मतलब यार ये रीजन चलेगा नहीं, राइट. ये रेमेडी अवेलेबल क्या है, तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल, तो ये सीधा एनसीएलटी को एप्लीकेशन कर सकता है व्हेनेवर कंपनी रिफ्यूजेस टू रजिस्टर. एंड इफ अगर एम्प्लॉई जीत जाता है केस, तो एनसीएलटी ऑर्डर देगा कंपनी को कि रजिस्टर इन 10 डेज प्लस पे डैमेजेस. अगर इस एम्प्लॉय को कुछ डैमेजेस हुए हैं, जैसे कि भाव बढ़ गया तो उसको ज्यादा देना पड़ा, तो वो डैमेजेस वगैरह उसको पे करने बोलेंगे. ठीक है, एनसीएलटी विल ऑर्डर. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 17. You have joined as a compliance officer of the company on 1st June 2019. You realize that charge was created on 15th Feb 2019. Very good. So date आ गया. So charge है तो अपने को पता होना चाहिए. We are talking about section 77. अगर charge registered है on और after 2nd November 2018, तो याद रखना 30, 60, 60. नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस, एड वेलोरेम फीस, ऐसा मन में रेडी होना चाहिए. मैंने आगे पढ़ा ही नहीं है, राइट. 15 फेब को रजिस्टर हुआ है चार्ज, सॉरी क्रिएट हुआ है चार्ज 15 फेब 2019, मतलब ये ऑन और आफ्टर वाला हो गया. व्हाट आर द इमीडिएट स्टेप्स द कंपनी शुड टेक टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, तो रजिस्टर इट विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज, क्योंकि 30 डेज में ही नॉर्मल फीस लगती है. बाद में नेक्स्ट 60 डेज भी कब से गिनना है, क्रिएशन से गिनना है. सो नेक्स्ट 30 में भी तुम्हें क्या लग जाएगा, एडिशनल फीस लगेगा. एंड अगर और डिले किया तो नेक्स्ट 60 डेज तुम्हें एड वेलोरेम फीस लगेगा. ये तो फीस बेस्ड ऑन परसेंटेज होता है, जितना बड़ा लोन उतना बड़ा फीस लगेगा, राइट. सो टू अवॉइड दिस इट इज बेटर कि तुम 30 दिन में रजिस्टर कर लो, राइट. फॉर दिस यू नीड टू डू द कैलकुलेशन ऑफ द डेट स्टार्टिंग फ्रॉम 16th Feb. 15 फरवरी को क्रिएट हुआ है ना, सो स्टार्ट काउंटिंग 30 days from 16th Feb, right. ये जो 30 डेज के अंदर तुम रजिस्टर करने वाले हो, कहां से स्टार्ट करना है, मेक डोंट काउंट फ्रॉम 15, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 16. 16th विल बी द फर्स्ट डे, राइट. इसमें डेज का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, एंड माइंड यू इट दिस इज February 2019, सो ये लीप ईयर नहीं है. फरवरी का महीना है तो 28 दिन आएंगे. सो यू नीड टू कैलकुलेट थोड़ा मैथ्स. अगर दूसरे, देखो इंस्टीट्यूट भी कितना स्मार्ट है कि अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन देना होगा तो वो लोग फरवरी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला है. तो टेक्निकली मैं भी थोड़ा स्मार्ट हूँ, राइट. कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन करना है कि भाई 28 दिन है तो यार गिनेंगे कैसे, 30 होता है तो एकदम फटाफट ईजी हो जाता है. सो 16 तारीख से कुछ नहीं करने का, 10 सेकंड जाएगा, 15 सेकंड जाएगा, चलेगा, उंगलियों का सहारा लेने का, कुछ ऐसा इसमें प्लस माइनस करने बैठने का नहीं. 16 तारीख से गिनती चालू करने का. तुम्हारे पास उंगलियां हैं, उंगलियों में 12-12 कॉलम्स है. इफ यू टेक 4 फिंगर्स, एक बार करो, 2 बार करो, 24 हो जाएगा. फिर 2 उंगली गिनो, जो डेटा आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होएगा. देखना है. सो आई विल ऑल्सो डू विथ यू, यू कैन ऑल्सो डू विथ मी. सो टेक योर हैंड, यू हैव 12 कॉलम्स, डोंट काउंट द थंब. एक बार करोगे 12 दिन, 2 बार करोगे 24 दिन, फिर 6 दिन मतलब खाली 2 उंगली. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 पे 29 मत कर देना. 28 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. देखो
24 डेज हो गया 11 पे, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सो मुझे चार्ज रजिस्टर कर देना है कब तक? बाय 17 मार्च। 17 मार्च तक रजिस्टर किया तो जो नॉर्मल फीस है वो ही मुझे लगेगा, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई एडिशनल फीस लगा जाएगा। नॉर्मल फीस रेंजेस फ्रॉम 300 to 500, वो ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली इट इज समटाइम्स 600 ऑल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑथराइज कैपिटल। ओके, रफली एवरेज बेसिस पे इसका 500 रुपया ही, एवरेज के बेसिस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, इसका फीस कैन बी 500 रुपीज। ओके राइट, सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 17। Next we have is question number 18. There are 7 shareholders in a private limited company. No problem. Registered office उनका चेन्नई में है. 6 are from France, French nationals belonging to same family holding 95% of the voting rights. The shareholders are unable to come down to Chennai and wish to hold annual general meeting in Paris. AGM section 96 के ऊपर क्वेश्चन है ये. Annual general meeting. लॉ क्या बोलता है? एजीएम शुड बी हेल्ड इन द रजिस्टर्ड ऑफिस पे या तो सॉरी सिटी ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस पे। वैसे सिटी, टाउन और विलेज भी है, जो भी है, राइट। एनी अदर प्लेस पे अलाउड है वैसे, लेकिन वो एनी अदर प्लेस कब अलाउड होगी पता है? जब वो इंडिया में होगी, इंडिया में। एंड इंडिया में अगर एनी अदर प्लेस पे लेना है तो कंसेंट ऑफ 100% ऑफ द मेंबर्स चाहिए। अभी देखो इधर क्वेश्चन में दो गड़बड़ है। 95% इनके पास वोटिंग राइट्स है। दीज शेयर होल्डर्स आर अनएबल टू कम डाउन टू चेन्नई हु विश टू होल्ड कंपनीज एजीएम। तो ये लोग अगर सारे के सारे एग्री करते ना तो भी पेरिस में नहीं ले पाते। पेरिस क्या अपने भारत में है क्या? नहीं, पेरिस तो फ्रांस में है। और लॉ क्या बोलता है? भाई एजीएम तो इंडिया में ही लेना पड़ेगा। हाँ, कहीं दूसरी प्लेस पे लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, बट यू शुड कंडक्ट एजीएम इन इंडिया ओनली। एनी अदर प्लेस, पेरिस की जगह पे तुमको पटना में मीटिंग करनी है, कर लो, वो भी 5 अल्फाबेट, ये भी 5 अल्फाबेट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 19। XYZ Limited has issued a notice on 1st August 2019 to hold AGM on 24th August. The company had given notice through email to all the members. कोई बात नहीं, as per the record of company's read receipt. The same was received by all the members of the company. Check the validity of the notice. भाई अगर तुम्हें पता हो तो नोटिस अंडर सेक्शन 101 शुड बी गिवन जनरल मीटिंग का 21 क्लियर डेज। अगर ईमेल किया है तो 21 ही, अगर ये चिट्ठी भेजी होती फिजिकली तो 21 नहीं +2 कर देते, बट यहाँ पे +2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू डू +2 ओवर हियर। क्यों? क्योंकि ईमेल है, ईमेल, ठीक है। देखो ईमेल दिया है यहाँ पे, सो नो नीड टू डू दिस +2, ईमेल है ना, सो इग्नोर दिस +2। सो फर्स्ट अपना हम लोग देख लेते, 1 अगस्त को नोटिस दिया, मीटिंग 24 को है, तो क्लियर डेज का मतलब 1 को इग्नोर कर देंगे, 24 को भी इग्नोर कर देंगे, तो बीच में पूरे 21 डेज होने चाहिए। सो है 21 डेज, 2 से 23 तारीख, इट इज 22 डेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो द नोटिस इज वैलिड, ठीक है, ये नोटिस सही है, सेंडिंग ऑफ नोटिस इज वैलिड, बराबर है, कोई टेंशन नहीं है। 23 डेज मत लगा देना, क्यों? क्योंकि ईमेल है। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर 23 होता तो आंसर तुम लोग बोलते नो नॉट वैलिड, तुम बोलते 2 दिन एडवांस लेना पड़ता है, तो इन लोग ने देखो 22 दिन रखा हुआ है, बराबर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 is the 21st day, 22nd August is the 21st day। सो मैंने बोला ना 22 दिन होगा, और इन लोग ने तो 24 दिन को भेजा है, राइट। तो यहाँ पे अपना डेट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। इनोवेटिव इंजीनियर्स हैज 2505 मेंबर्स। आई थिंक दिस विल बी ऑन कोरम। मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कभी भी दे देते ना तो अपने को लाइट होना चाहिए, कोरम की बात होगी। देखो स्टेट वेदर रिक्वायर्ड कोरम है कि नहीं। सो इफ यू नो कोरम कौन से सेक्शन में आता है? 103 में आता है कोरम, सेक्शन 103 में आता है, राइट। अगर 2550 मेंबर है तो मेरा कोरम
15 मेंबर्स का होगा, इट इज ऑब्वियस, बट लेट्स सी क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अविनाश आस्क्ड यू, तुम सेक्रेटरी हो, रिक्वायर्ड कोरम कितना है, तो मैंने बोल दिया 15 है। इन्फॉर्म द एग्जीक्यूटिव कोरम मस्ट बी प्रेजेंट फॉर होल्डिंग ईजीएम, स्टेट वेदर कोरम इज प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग और नॉट। ठीक है, कोरम शुड बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, वो तो अपने को पता ही है, शुरू से एंड तक। यहाँ पे क्योंकि कोई नंबर नहीं दिया है, सो तुम लोग को खाली अविनाश को इतना बताना है कि भाई 15 का कोरम होना चाहिए, सिंस वी हैव 2505 मेंबर्स। अगर तुम्हें पता हो तो अप टू 1000 में कितने थे, 5, 1001 टू 5000 में कितने थे, 15, 5001 प्लस में कितने थे, 30, तो अपना 15 वाला कैटेगरी का कोरम आएगा। सॉरी, सेम क्वेश्चन अगेन बाय मिस्टेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फॉर एजीएम, राइट, for annual general meeting of the company, proxies were received from A, B, C and D. C and D deposited proxy forms 7, ये जरा करेक्शन कर लेना, ठीक है, यहाँ पे A, B, C and D. C and D deposited their proxy forms 72 hours before the meeting, as the articles of the company required that it should be deposited 72 hours before the meeting. A and B deposited proxy form 50 hours before the meeting, hence chairman rejected their proxy forms. C represented 48 shareholders having 8%, and D represented one shareholder having 11% rights. In the light of above provision, explain the validity. Now इधर सबसे पहले तुम लोगों को दो चीजें, एक तो सबसे बड़ी गड़बड़ है ये 78, दिस इज नॉट अलाउड, आर्टिकल्स में लिख के भी नॉट अलाउड है। ठीक है, तुम्हारा टाइम पीरियड अगर तुम्हें याद हो तो मैंने सिखाया था मैक्सिमम कितना है, 48 आवर्स, उससे ज्यादा तो तुम कर ही नहीं सकते। सो 48 आवर्स के पहले तुम्हें कोरम तुम्हें प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर देना है। सो ये 72 आवर्स लिखा है ना यहाँ पे कंपनी ने, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये जो 72 आवर्स है ना, ये गलत है, ये नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, बट वी हैव अदर थिंग ऑल्सो। अभी देखो यहाँ पे सी रिप्रेजेंटेड 48 शेयर होल्डर्स हैविंग 8% शेयर होल्डिंग, चलेगा? हाँ, क्योंकि याद है मैंने सिखाया था 50% और 10%, राइट, तो इधर 48 एंड 8 है, मतलब चलेगा। एंड डी प्रेजेंटेड वन शेयर होल्डर हैविंग 11, तो इन लोगों का प्रॉक्सी भी वैलिड है दोनों का। ये जो सी और डी है यहाँ पे, सी रिप्रेजेंटेड, देखो सी मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं, यू विल अंडरस्टैंड। देखो ये रहा, सी रिप्रेजेंटेड 48 शेयर होल्डर्स हैविंग 8% शेयर होल्डिंग, तो ये भी चलेगा, क्योंकि याद है अगर तुम्हें एक से ज्यादा लोगों का प्रॉक्सी बनना है तो मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी बन सकते हो? द आंसर इज 48, एंड उनका होल्डिंग कितना होना चाहिए? इट इज 8%, इट इज 8%, मतलब 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वी हैव 8%, सो ये जो फर्स्ट कंडीशन है अपना 48 एंड 8, दे बोथ आर वैलिड। 48 मेंबर्स एंड 8%, ये दोनों क्या है? वैलिड है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डी। डी रिप्रेजेंटेड वन शेयर होल्डर हैविंग 11, ये भी चलेगा, लेकिन सर आपने तो बोला ना 10 होना चाहिए, लेकिन दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल अगर तुम सिर्फ 1 पर्सन के प्रॉक्सी बन रहे हो या 1 मेंबर के प्रॉक्सी, तो ये जो लिमिट ऑफ 10% है यहाँ पे, दिस विल नॉट अप्लाई। लिमिट ऑफ 10% will not apply if you are a proxy of only one member। ठीक है, वो 48 लोगों का अगर सपोज ये 48 और जो 8 है, ये 48 11 होता, तो क्या ये लोग ये पर्सन 48 लोगों का प्रॉक्सी बन पाता? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट। ठीक है, so this type of questions are also there in your exams।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? रॉबर्ट. Robert is a direct member. If you see, Robert is a member of MLM Limited, right? Submitted his proxy, again proxy form before the scheduled time. Scheduled time कितना है? 48 hours होना चाहिए. लेकिन again देखो, articles of the company provided that proxy form should be submitted to the company at least 70 hours before the scheduled time. The chairman of the company rejects the form of proxy on the ground that it is violation of articles. Referring to the provisions of Companies Act, examine the validity of the chairman decision. ये भी ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, राइट, इसमें अगर तुम लोग 70 आवर्स लिख दोगे, सो ये नहीं चलेगा भाई, दिस इज इनवैलिड. जब लॉ ने 48 दिए हुए हैं, 48 आवर्स इज एज पर कंपनीज एक्ट. ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग कि हाँ भाई 70 आवर्स के पहले डिपॉजिट करो? तो ये जो 70 आवर्स वाला कंडीशन है ना, ये इनवैलिड है, राइट. तो ये जो चेयरमैन जीत पकड़ के बैठा है कि नहीं तुम लोग को 70 आवर्स के पहले ही प्रॉक्सी देना है, this is invalid, right? So examine the validity अगर पूछा है तो chairman's decision is invalid. Okay, next, कीर्ति लिमिटेड has total paid up share capital of 23 crores. ठीक है, no problem. 23 crores का paid up share capital है. उसका annual general meeting schedule हुआ है 27 December 2018 को. Now if you see, Ritik is holding paid up share capital of nominal value of 3 crores and Sonu is holding paid up share capital of 2.4 crore. तो देखो यहाँ पे सब लिखता हूँ मैं पहले. पेड अप शेयर कैपिटल ऋतिक का कितना, सॉरी कीर्ति लिमिटेड कंपनी है 23 करोड़. इसका 10% कितना हो जाएगा? 2.3 करोड़. ओके, प्रॉक्सी के ऊपर ही है. नाउ ऑन 24th December 2018, both Ritik and Sonu wanted to issue proxy in favor of Rohit to attend meeting on their behalf. तो यहाँ पे रोहित है, रोहित. इसको क्या बनाना है? प्रॉक्सी बनाना है. कौन बनाना चाहता है प्रॉक्सी? दोनों जन, अपना ऋतिक एंड सोनू. ऋतिक के पास अगर तुम लोग होल्डिंग देखोगे तो 3 करोड़ का है और सोनू के पास अगर होल्डिंग देखोगे तो 2.4 का है. तो दोनों का मिला के इट इज गोइंग टू बी 5.4 करोड़. तो आंसर इज, अपना रोहित दोनों का प्रॉक्सी नहीं बन सकता क्योंकि इट इज एक्सीडिंग 10%. सो आंसर क्या होना चाहिए? रोहित कैन बी प्रॉक्सी फॉर एनी वन मेंबर. ठीक है, बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन रोहित कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी फॉर एनी वन मेंबर, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. ऋतिक या सोनू में से किसी एक का प्रॉक्सी बन सकता है, 2 का नहीं बनेगा क्योंकि 10% से ज्यादा हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवीबी लिमिटेड वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड 15 lakhs आउट ऑफ प्रॉफिट्स. कोई बात नहीं, 15 लाख रुपए डिविडेंड देना है. नाउ इन लोग ने क्या बोला है? विदाउट मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. कर सकते हैं क्या? नहीं. डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, कंपल्सरी होता है. ठीक है, डेप्रिसिएशन is to be provided, right? If you see, the board of directors of AVB Limited wants to declare dividend of rupees 15 lakhs out of profits. कर सकते हो, but what you need to do is depreciation पहले provide करना, उसके बाद ही तुम जो पैसा बचता है उससे तुम dividend दे सकते हो. ठीक है. A company declared dividend on 21st November 2018. Company declared dividend on 21st November. Its reports on 22nd December 2018 that it could not pay dividend to 46 members as they are not traceable for the last 3 years. Advise the company with respect to unpaid dividend. Now unpaid dividend है, सबसे पहले तो dividend is to be paid within how many days? 30 days. अगर नहीं पे कर पाते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Unclaimed.
वो अनक्लेम डिविडेंड का पैसा तुम्हें ट्रांसफर करना है एज पर सेक्शन 124 टू सेपरेट बैंक अकाउंट नोन एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट. राइट. इन यहाँ पे कितने साल तक पड़ा रहेगा पैसा? 7 years तक पड़ा रहेगा. 7 years में दिस 46 members कैन कलेक्ट देयर अमाउंट फ्रॉम द कंपनी बिकॉज स्टिल दिस अकाउंट इज इन द हैंड्स ऑफ कंपनी. हाँ, लेकिन 7 साल के बाद अगर नहीं क्लेम किया तो लेटर आफ्टर 7 years ये पैसा कहाँ चला जाएगा? IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अंडर सेक्शन 125. ओके, सो ये भी एक डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन है. $46 members कैन कलेक्ट देयर डिविडेंड विद इन 7 years क्योंकि उनका पैसा अनपेड डिविडेंड में होगा. जैसे ही कंपनी अनपेड डिविडेंड में ट्रांसफर कर देती है पैसा, तो उनको एक दूसरा काम भी करना है. वो क्या है उनका काम? दैट इज उनको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना है डिटेल्स उन सभी लोगों का, 46 लोगों का, कि भाई हमने तुम्हारा हमने तुम्हारा डिविडेंड कहाँ कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में. राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. EFG प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ HIG. ठीक है, EFG, HIG एंड KLM, तो दोनों उसकी क्या है? सब्सिडरी है. EFG इज होल्डिंग कंपनी और ये दोनों क्या है? सब्सिडरी कंपनी. नो प्रॉब्लम. Is company required to consolidate financial statements? Yes, company is required to do CFS. EFG जो है वो दोनों के कंसोलिडेट करेगा. HIG प्लस KLM सबका मिला के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. नाउ जो भी कंपनी कंसोलिडेशन करती है, फॉर एग्जांपल यहां पे कंसोलिडेशन कर रही है EFG, वो अपने स्टेटमेंट के साथ वो एक AOC1 अटैच करेगी. ठीक है, AOC1 अगर तुम्हें याद हो तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ सेलियंट फीचर्स, और यू कैन से सेलियंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑफ सब्सिडरी कंपनीज. राइट. तो ये हो गया अपना आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27. राइट, कि जब भी होल्डिंग सब्सिडरी होता है, ये मैंने तुम लोग को अकाउंट्स वाले चैप्टर में सिखाया था अंडर सेक्शन 129. CFS के बारे में मैंने बोला था तुम लोग को. जब भी कंसोलिडेशन होगा तो एक AOC1 अटैच कर देना, ताकि किसी भी शेयर होल्डर को शॉर्ट में अगर सब्सिडरी के अकाउंट्स को समझना है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन number 28. Sam and company are the auditors of the company of MAS Limited appointed at AGM on 15th September 2018 for a period of 5 years. No problem. Sam auditor है, 5 साल हो गए हैं. ओके, कंपनी कौन सा है? पब्लिक कंपनी. राइट, for 5 years. However, due to difference of opinion, Sam and company decided to not to seek reappointment of auditors at the AGM held on 20th September, but failed to inform their unwillingness in prior to AGM. Company went ahead with them appointing the auditors as on 20th September. Post AGM held on 20th September, Sam and company informed their unwillingness to act as the auditor. Comment on the validity of such appointment and what steps shall be taken by the company under these circumstances. तो देखो, this is bit tricky again. अगर तुम्हें याद हो तो MAS Company Limited, now it is a public company, right? Appointed at AGM at 15 September for a period of 5 years. So 2017 से 5 साल के लिए अपॉइंट. However, due to difference, Sam and company decided not to seek reappointment. उसको काम नहीं करना है कंटिन्यू. ओके, मींस
ये कंपनी को रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर रोटेशन एप्लीकेबल होता तो वो तो डायरेक्टली निकल जाता. ओके. However, due to difference now, on 28th September 2018, they failed to inform their unwillingness in writing prior to AGM. 5 साल इनका हो गया है. सैम एंड कंपनी डिसाइडेड नॉट टू सीक रीअपॉइंटमेंट, मतलब ये लोग रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल थे. ओके. हाउएवर ड्यू टू डिफरेंस 28th September को failed to inform their unwillingness in writing to the AGM. Company went ahead and appointed them as auditor on 20th September. Post AGM held on 20th September, Sam and company informed their unwillingness. Comment on the validity of such appointment and what steps can be taken by the company to under these circumstances. So कोई बात नहीं, ऑडिटर रिजाइन कर सकता है. ओके. रिजाइन कर देगा वो. रेजिग्नेशन फॉर्म 2 जगह पे सबमिट कर देना है, आरओसी को एज वेल एज कंपनी को, राइट, एंड देन द मैटर इज ओवर. नेक्स्ट इज रिपोर्टेड डिप्लोमैट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ डिप्लोमैट लिमिटेड रिपोर्टेड अ फ्रॉड. अभी फ्रॉड 25 लाख का है. सो अगर तुम्हें याद हो तो फ्रॉड में 2 कैटेगरी था, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12. लेस देन 1 करोड़ एंड दूसरा था 1 करोड़ और मोर. लेस देन 1 करोड़ है तो कुछ नहीं, या तो बीओडी या ऑडिट कमिटी जो भी है कंपनी में उसको इन्फॉर्म करो, राइट. बीओडी या ऑडिट कमिटी को इन्फॉर्म करो. ओके. एंड दे विल डिस्क्लोज दिस इन द बोर्ड रिपोर्ट. क्या क्या चीज डिस्क्लोज करेंगे? तो नेचर ऑफ फ्रॉड, पर्सन इन्वॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, लास्ट रेमीडियल एक्शन. कंपनी ने उस पर्सन के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया ये भी बताएंगे. लेकिन रेमीडियल एक्शन बताएंगे तो कब बताएंगे? इफ नो एक्शन, सॉरी, नेम ऑफ पर्सन कब इन्वॉल्व करेंगे? यहां पे नेम ऑफ पर्सन, इफ नो रेमीडियल एक्शन टेकन. मतलब या तो पर्सन का नाम आएगा या तो रेमीडियल एक्शन आएगा, दोनों नहीं आएगा. क्योंकि अगर रेमीडियल एक्शन नहीं लिया है तो मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन, राइट. तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर देनी है. नेक्स्ट, इंडियन कंपनी है वार्नर लिमिटेड, जिसका नेट प्रॉफिट है 4, 7, 6 and 7. So 4 plus 7 plus 6 plus 7, right? It is 24 crores. But ये तो 4 साल का है. Okay. Net profit for last 4 years included dividend of 1 crore received from WB Limited as an Indian company. Discuss whether Warner Limited is required to do CSR activities and how much should it spend. If no, state the reasons. So देखो यहाँ पे CSR में तो सबसे पहले 2% of preceding financial year लेना है. now देखो नेट प्रॉफिट डिविडेंड का पैसा कब इंक्लूड करते हैं? अगर सामने वाली कंपनी CSR कर रही है तो उसका पैसा हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे. बट यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, सो विल काउंट दैट ऑल्सो. सो लास्ट 3 years इज 7 plus 6 plus 7 is equal to 20 crores. इसका डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो अपने को एवरेज मिल जाएगा. सो इसका एवरेज आता है 6 crores 66 lakhs 6.66 crores इसका आया. इसका अपने को 2% निकालना है. So the answer is 13,33,333. इतना तुम्हें स्पेंड करना है CSR एक्टिविटीज में. ओके. 2% स्पेंड करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 31.
board of directors T Limited is a listed company, 20 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है, 9 डायरेक्टर है इसके पास, राइट. लिस्टेड कंपनी है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए, हाँ, इट शुड बी 1/3, राइट. क्योंकि इट इज अ लिस्टेड कंपनी, द आंसर इज 1/3 शुड बी इंडिपेंडेंट. अपना जो सेक्शन है 149 उसके अंदर तुम्हें दिख जाएगा. इफ लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 ऑफ बीओडी शुड बी इंडिपेंडेंट. हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इफ इट वाज अनलिस्टेड, तो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए. Can T Limited appoint independent director for second consecutive term of 6 years if the first term of 4 years? No. Maximum कितना allowed है? 5 years ही allowed है, ठीक है. Maximum कितना allowed है? 5 years. Team Limited want to appoint another independent director for the further period of 2 years. He has already completed 2 consecutive terms of 4 years each. क्या इसको allow कर सकते हैं? No, क्योंकि independent director का maximum term ही कितना होता है? 2 terms, right? ठीक है. तो ये आंसर है तुम्हारा. First answer is 1/3, second is 2, third is no, and fourth one is also no. Next question क्या है? Number 32. Happy Mobile Limited is engaged in manufacturing of mobiles. उसके पास भी 9 डायरेक्टर है, सबके नाम दिए हुए. Articles do not provide for retirement of all the directors. Calculate the number of directors liable to retire at AGM. So out of total directors, इसमें हटा दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, 2/3, 1/3, और इस 2/3 का फर्दर ब्रेकअप करना होता है. 2/3 ये क्या हो जाएंगे? रीअपॉइंट, और 1/3 क्या हो जाएंगे? रिटायर. सो इफ यू सी 9 डायरेक्टर्स में से किसको हटा देना? इंडिपेंडेंट कितने हैं? आशीष इज इंडिपेंडेंट, उसको हटा दो. गगनदीप इंडिपेंडेंट है, राइट. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को भी एप्लीकेबल नहीं होता. सो आउट ऑफ 6, अभी मेरे पास टोटल 6 डायरेक्टर है. 6 का 2/3 होता है 4, 1/3 होता है 2. 3 और 1. सो टेक्निकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राइट. ठीक है. तो यहाँ पे देखो 4 का 1/3 इज गोइंग टू बी डेसिमल समथिंग 1.33. सो अगर 1.33 देखोगे तो मैं इधर एक तरफ 1.33 आएगा, एक तरफ 2.33 आएगा. तो मैं दोनों को राउंड ऑफ नहीं कर सकता, एक को ही करना पड़ेगा. सो इसमें अगर तुम आंसर 1 लिखोगे तो भी चलेगा, 2 लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, दोनों रिटायर हो सकते हैं, बट कंसिडरिंग तुम कितनों को रीअपॉइंट कर रहे हो. सो अगर 1 रिटायर हो रहा है तो 3 रीअपॉइंट, अगर 2 रिटायर हो रहा है तो 2 रीअपॉइंट. ये याद रखना. ओके. नेक्स्ट, X proposes his candidature as a director of X Limited along with the deposit of rupees 1 lakh. X failed to get appointed but received 39% votes. याद है ये अपना 1 लाख रुपए का डिपॉजिट जो दिया रहता है, ये डिपॉजिट 39% फेवर में वोट्स आए हैं, तो इसको डिपॉजिट का पैसा वापस मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि कितने चाहिए थे? 26% भी अगर फेवर में आ जाते तो डिपॉजिट का पैसा हम लोग क्या करते थे? वापस दे देते थे. ओके, लेकिन अगर 25 तक आते तो डिपॉजिट का पैसा नहीं देते. नेक्स्ट, एक्स्ट्रा पावर लिमिटेड डिजायर्स टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर. ओके, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कन्फर पावर्स टू द बोर्ड टू अपॉइंट सच अ डायरेक्टर. एज सच, मोहन इज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ऑन 12 December. The 5th AGM of the company was scheduled on 17th, however adjourned on 30th September. Decide the date up to which Mohan can continue as an additional director. Mohan will continue till the date of AGM only, क्योंकि if you see provisions of section 164 subsection 2 क्या कहता है कि the retiring additional director should hold office till the date of next AGM. Okay. Evaluate in the following cases which will be disqualified. Now, Thakur, who holds directorship in Turf Limited, which did not file financial statements with the ROC for the year 15-16, 16-17, 17-18. However, company has filed financial statement during August 19 to rectify the lapse. So this
person is disqualified for 5 years. Section 164 subsection 2 में आता है, ये disqualify हो जाएगा for 5 years, क्योंकि the company which has failed to file financial statements, right, उसके directors disqualify हो जाते हैं. Umesh was convicted of an offence, moral turpitude, for 8 years, so this is disqualified. अच्छा, and has gone to appeal higher court where decision is pending. तो as of now is not disqualified till appeal का order आता है. अपील का ऑर्डर आने तक ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड. एक बार अपील का ऑर्डर आ गया कि ही इज डिस्क्वालिफाइड, फिर ही कैन फाइल द सेकंड अपील आल्सो विद इन हाउ मेनी डेज, 7 डेज. ओके, फिर वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा. 5 board meetings were held in Asha Limited during the period from January to June in the year 2016. Rajiv, an additional director, attended none of those meetings. For the first 2 meetings, he sought leave of absence but did not inform board. Examining the provisions of the act, decide whether he is disqualified to act as a director. See, law क्या बोलता है सेक्शन 167 में कि अगर तुम 12 months तक एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करते तो तुम्हें वेकेट करना पड़ेगा. यहाँ पे तो सिर्फ 5 महीना ही हुआ है, जैन टू जून, 5 months, 6 months. ओके, सो इन दिस केस ही कैन स्टिल कंटिन्यू, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड. हाँ, अगर 12 months तक एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की होती तो ही वुड हैव बीन disqualified, वेकेट करना पड़ता उसको. नेक्स्ट, Paras is the director of Spike Limited, resigns from the office of the director. He has forwarded a copy of resignation to the company and registrar of companies in the time. The company, however, did not file the ROC. Explain the provisions with deciding the status of Paras. What can Paras do is Paras can file DIR 11 with the ROC within how many days? 30 days. क्योंकि अगर कंपनी फाइल नहीं करती तो पारस कैन ऑल्सो फाइल, दोनों प्रोविजंस अलाउड होते हैं. पारस कैन फाइल DIR 11, जबकि कंपनी को कौन सा फॉर्म फाइल करना था? DIR 12. दोनों का टाइमलाइन वाज सेम, हाउ मेनी डेज? 30 डेज में फाइल होना चाहिए था, बट क्योंकि कंपनी कर नहीं रही है तो पारस कैन ऑल्सो फाइल दिस फॉर्म DIR 11 विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज. नाउ इन जनरल मीटिंग motion was put for removal of small shareholders. ठीक है, small shareholders contended that only small shareholders are entitled to vote at this motion, right? It is related to removal of small shareholder director and the motion should be passed as special resolution. Is this argument valid? The answer is no. Small shareholder नहीं, all shareholders will vote. एंड जो रेजोल्यूशन है वो कौन सा आएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी इनका क्या हो जाएगा? इनवैलिड. सो व्हेनेवर यू राइट द आंसर, मेक श्योर तुम लोग वो पैटर्न फॉलो कर रहे हो. मैं यहाँ पे तुम्हें कंक्लूजन ही बता रहा हूँ. ओके, आई विल बी जस्ट टेलिंग यू द कंक्लूजन्स. तुम लोग प्रोविजंस, फैक्ट्स ऑफ द केस, एनालिसिस, एंड देन यू विल सी दिस कंक्लूजन इन योर आंसर. नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड इज कंसिडरिंग प्रपोजल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सेक्शन इन ABC Limited. तो सेक्शन 186 आ गया, इन्वेस्टमेंट आया. तो द कंपनी हैज 5 डायरेक्टर्स एंड 4 डायरेक्टर्स वेर प्रेजेंट. 3 gave consent, 1 abstained. तो 186 LIGS सबसेक्शन 5 बोलता है कि कंसेंट, अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, LIGS करना है, तो कंसेंट ऑफ ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग is to be obtained. ओके, तो यहाँ पे देखो 5 डायरेक्टर थे, 5 में से आउट ऑफ 5 4 प्रेजेंट एंड 3 gave consent. So in this case consent of all the directors नहीं है. So can company make the investment? No, company cannot make the investment. Right? 3 कंपनी है, A लिमिटेड, B लिमिटेड, C लिमिटेड एंड D लिमिटेड. 4 कंपनी है. They are group investment companies. A Limited has invested 52% in B. And B Limited has invested 55% in C. 52, 55. तो ये देखो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन तो बन रहा है.
Further, C Limited has invested in 51% of D. ये अलाउड नहीं है, C2D विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 बोलता है लेयर वॉज ओनली अलाउड अप टू 2। तो ये तो देखो ए बी का बना पहला लेयर, ए और सी का बना दूसरा लेयर 1 and 2, ए और डी का बनता तीसरा लेयर, तो थर्ड लेयर इज नॉट अलाउड, ठीक है। सो इफ यू सी दिस, इफ ए होल्ड्स बी, बी होल्ड्स सी, तो ये दोनों के दो लेयर बन गए। इधर जो सी ने डी में पैसा लगाया ना, दैट वाज नॉट अलाउड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनीज में ओनली अलाउड इज अप टू 2 लेयर्स। सो दैट इज व्हाई द इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट वैलिड, बट नॉट ऑल। सी ने जो डी में इन्वेस्टमेंट किया है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बाय सी टू डी इज इनवैलिड। क्यों? क्योंकि दो लेयर ऑलरेडी खत्म हो चुके, ये तो तीसरा लेयर बन रहा था। ओके, नेक्स्ट, XYZ Limited, a company, has paid up share capital of 60 crores, okay, and free reserves of rupees 25 crores. It desires to make loan of rupees 20 crores to M Limited, okay. Loan LIGS, फिर से one company to another company. The XY Limited has already made investment in many companies, including loan to 35 crores. Can it go with loan to M Limited? So देखो, XYZ Limited का एग्जिस्टिंग लोन कितना है? तो 35 करोर्स। प्रपोज्ड कितना है? 20 करोर्स। अभी अपने को लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे देखो 55 करोर्स तो इनका हो रहा है। नाउ वी नीड टू सी के लिमिट के ऊपर जा रहा है। अगर लिमिट के ऊपर जा रहा है तो एम लिमिटेड को लोन देने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा, नहीं जा रहा है तो एसआर की जरूरत नहीं है। सो लिमिट क्या है? इट इज 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पे तो अपने को प्रीमियम दिया ही नहीं है, तो अपने को 60% खाली किसका लेना है? फ्री रिजर्व्स और कैपिटल का ही लेना है, ओके। और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो देखो फ्री रिजर्व्स तो मेरे 25 करोड़ है, तो यहां पे तो 25 करोड़ आएगा आंसर। इधर 60 प्लस 25 85 करोड़ होता है, ठीक है। 85 करोड़ इंटू 60% इज 51 करोड़। देखो लिमिट कितना आया? विच एवर इज हायर में 51 करोड़ का लिमिट आया, और अपना टोटल बोरोइंग कितना जा रहा है? एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड 55। सो देयरफॉर 20 करोड़ का लोन देने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा लिमिट देखो कितना आ रहा था? 55 करोड़ का लिमिट आ रहा था, जबकि तुम्हारा मतलब एग्जिस्टिंग लिमिट लोन का और एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड का, सॉरी प्रपोज्ड लिमिट, सॉरी अगेन एग्जिस्टिंग लोन तुम्हारा 35 करोड़ का है, प्रपोज्ड लोन तुम्हारा 20 करोड़ का है, सो टोटल 55 करोड़ हो रहा है, जबकि तुम लिमिट देखो इट इज ओनली 51 करोड़। सो कैन यू गिव लोन? यस, बट तुम्हें क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट इज जॉली रिटेल्स लिमिटेड issued a notice of meeting of board on 5th June, ठीक है, at its corporate office. One of the directors intimated that he would be participating in the meeting through video conferencing. The secretary contended that meeting cannot be participated video conferencing. Concerned directors insist that provide video conferencing facilities for attending the meeting. Is the contention of secretary tenable? No, video conferencing facility देनी पड़ती है, ठीक है, राइट। यहाँ पे केस स्टडी आएगा नहीं, ओके, देयर इज नो सच केस स्टडी अबाउट दिस क्वेश्चन, तो वो हटा दिया है, नो क्वेश्चन ऑन दैट, राइट। सो बेसिक चीज याद रखना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
Next, the board of director of listed company was called on a shorter notice. Urgent. Examine the validity. None of the independent directors could attend the meeting. Examine the validity. Now जब भी मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे होती है और कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो लॉ क्या बोलता है? एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट, एंड अगर एब्सेंट है तो क्या बोला गया है? डिसीजन should be ratified by at least one independent director, तब जाके वो डिसीजन वैलिड होगा. ओके, जो भी अर्जेंट बिजनेस बाकी डायरेक्टर ले लेंगे वो तब वैलिड होगा अगर उसको रैटिफाई किया जाता है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैटिफाई? रैटिफाई का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल. काम पहले हो गया, अप्रूवल बाद में लिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. JKJ लिमिटेड एज 10 डायरेक्टर्स. ओके, बोर्ड मीटिंग था 19 अक्टूबर को. 2 directors participated in person, 1 director through video conferencing. 2 directors were interested in the agenda, hence did not participate. The auditor claimed that quorum was not present. Is it valid? So quorum क्या है? 1/3 of directors or 2, whichever is higher. ठीक है. सो अपने टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे? 10 का 1/3 क्या आएगा? 3.3 समथिंग, विच इज इक्वल टू 4 और 2 विचेवर इज 4 जन होने चाहिए. सो मीटिंग में कितने लोग आए? और एक ऑडियो. कोरम इज नॉट वैलिड, नॉट प्रेजेंट. कोरम इज नॉट प्रेजेंट. तो यहाँ पे किसने एलिगेशन लगाया? ऑडिटर ने, कि भाई कोरम प्रेजेंट नहीं है. डू यू एग्री विद द आंसर? यस, ऑडिटर इज करेक्ट. Next, number 45. Out of 9 directors of Rooftop Limited, 5 are Indian nationals, 3 are foreign residents, 1 is PIO. The article stipulate that quorum of the board meeting shall consist of 5 directors, wherein at least 1 director shall be foreign resident. Referring to the provisions, examine the validity of the articles. Yes, you can increase the quorum. Increasing of quorum is allowed. ठीक है, you can increase the quorum. Increasing of quorum is allowed. Higher quorum is allowed. ठीक है. सो क्योंकि अगर 9 देखोगे तो आंसर क्या आने वाला था? 3. तुमने तो 5 बोला है. सो लॉ तो फुलफिल हो ही रहा है ना. ओके, सो दिस quorum can be considered. This is a valid provision. पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के बारे में बोला है. तुम सीएस हो, सॉरी नॉट तुम, आर इज न्यूली क्वालिफाइड सीएस एंड दे सीक्स एडवाइस हिम. तुम एडवाइस करोगे तो देखो, सबसे पहले तो ड्राफ्ट भेजा जाएगा. इसमें वोटिंग टाइम 7 + 2 days. आई होप +2 days तुम्हें याद होंगे. अगर नोटिस कैसे भेजा गया है, ड्राफ्ट कैसे भेजा गया है? फिजिकली. ठीक है. अगर इलेक्ट्रॉनिकली भेजा होता तो खाली 7 दिन ही मिलते, बट क्योंकि फिजिकली भेजा है तो 7 + 2 days. ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो. हाँ, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स कैन रेस ऑब्जेक्शन. One-third of total directors can raise objection. Clear? Number 47. Lala Limited is engaged in manufacturing stainless steel products. Company also has 120 megawatt captive power plant within the premises. Share capital of Lala is 580 crores. Investment made in power plant is 150 crores. Board of Director wants to sell the power plant to another steel company, thereby to raise 200 crores for the funding for installation of new furnace. Other outside bank liabilities of the company are 680 crores. Examine the requirement to pass special resolution. This is section 180. Undertaking.
अभी यहाँ पे कंपनी का 580 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स मतलब नेटवर्थ उसका कितना है 580 करोड़, एंड 150 करोड़ उन्होंने कहाँ लगा दिया, पावर प्लांट में। तो अभी ये चेक करना है कि ये जो पावर प्लांट इन लोगों को बेचना है ये अंडरटेकिंग है कि नहीं। 580 करोड़ का अपने को 20% निकालना है और उसका वैल्यू 20% से ज्यादा होना चाहिए। यस, आंसर आता है 116। 116 से ज्यादा में बेच रहे हो तो हाँ, इसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। सेक्शन 181A सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, एसआर इज रिक्वायर्ड। क्यों पता है ना, क्योंकि देखो 580 करोड़ है, इसका 20% कितना आता, 116 करोड़। सो अगर अप टू 116 होता तो एसआर वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे तो क्या है, वैल्यू इज मोर देन 116, नेटवर्थ का नेटवर्थ के से ज्यादा है, ठीक है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट मेड इन दिस पावर प्लांट इज मोर देन 20% ऑफ द नेटवर्थ, तो ये क्या हो गया पता है, अंडरटेकिंग हो गया। और अगर ऐसे अंडरटेकिंग को बेचना है तो तुम्हें क्या पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ओके, नंबर 48 नेक्स्ट। The board of directors wants to contribute 60,000 rupees to a charitable trust for the year 22-23. Company suffered loss. However, during the year 1920, 2021, net profits were 12 lakhs and 5 lakhs respectively. The directors were contemplating to contribute the said amount in spite of losses. Whether contribution towards gratuity, state whether can directors do so. Whether contribution to gratuity fund for employees of the company will be considered as contribution to charitable trust. Suitable assumptions can be made. So देखो, अगर 3 साल से प्रॉफिट नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, 12 लाख, ओके, प्लस 5 लैक्स को तुम लोग डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय उसका एवरेज निकालो, प्लस 0 ले लो क्योंकि लॉस यहाँ पे दिया नहीं है। सो आंसर विल बी 17 लैक्स डिवाइडेड बाय 3 एंड इसके 5% तक तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। $5,66,666। नाउ इसका 5%, इट इज 28,333। 28,333 है, जबकि इन लोगों को इन्वेस्टमेंट कितना करना है 60,000 का, तो इसके लिए इन लोग को ओआर पास करना पड़ेगा। ओके, राइट, इसके लिए इन लोग को ओआर पास करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज फंड के लिए अलाउड है, नहीं, एम्प्लॉइज फंड के लिए अलाउड नहीं है। एम्प्लॉइज फंड को हम लोग चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मानते, बोनाफाइड चैरिटेबल फंड होना चाहिए वो। Is it mandatory for every director to disclose his interest? Yes, under section 184 it is mandatory to disclose his interest in फॉर्म MBP1, ठीक है। MBP1 में उसको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है, जैसे कि वो अदर कंपनी में कहाँ कहाँ डायरेक्टर है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है, नेचर ऑफ हिज कंसर्न अदर कंपनीज इन विच इज अ डायरेक्टर, यस, उसको बताना है। MBP1 तुम लोग को 3 बार देना पड़ सकता है, एक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, आफ्टर अपॉइंटमेंट, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, first board meeting after change in interest. Okay, and the last question what we have is MAA Engineering Works Limited advance 25 lakhs to GP Constructions. A firm of managing director MAA engaged as a partner is a firm. The paid up share capital of MA is 1.6 crores. Company has taken loan from financial institution worth rupees 10 crores. All the shareholders of the company are individuals and there is no repayment of default in the borrowings. Turnover of the company is 50 crores during the last year. Ascertain whether grant of 25 lakhs to GP Constructions is in order of provisions of Companies Act or not. Now ये है सेक्शन 185 का लोन टू डायरेक्टर का प्रोविजंस, ठीक है। इफ यू रिमेंबर सेक्शन लोन 185, तो उसमें लास्ट में 3 एग्जेम्पशन आते थे कि नन ऑफ द शेयर होल्डर शुड बी बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड ऑल,
डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट लिमिट से कम होना चाहिए, ठीक है। सो वी विल रेफर दिस प्रोविजन, तुम भी चाहिए तो अपना बुक ओपन कर सकते हो। सी कैपिटल नो बॉडी कॉर्पोरेट इज देयर। दूसरा प्रोविजन क्या है वहां पे, borrowings of such company is less than twice the capital or 50 crores whichever is lower and such has no default। तो देखो all the shareholders are individuals, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। कंपनी प्राइवेट है वो तो है ही, सो ऑल द शेयर होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स। देखो नेचुरल पर्सन होने चाहिए, ये फुलफिल हो गया। बाय द वे सेक्शन 185 का एग्जेम्पशन है, ठीक है, एग्जेम्पशन टू प्राइवेट कंपनी। सेकंड इज बोरोइंग्स शुड बी लेस देन ट्वाइस द कैपिटल और 50 करोड़। अभी कैपिटल कितना है इसका, कहाँ दिया है कैपिटल, 1.6 करोड़। तो 1.6 इंटू 2.12 करोड़। तो यहाँ पे तो खाली 25 लाख का ही देना है, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये भी विद इन द लिमिट है, लिमिट से कम है। क्या डिफॉल्ट है, नहीं डिफॉल्ट भी नहीं है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सो यस सेक्शन 185 विल नॉट अप्लाई टू दिस कंपनी। इन दिस केस दे कैन गिव लोन टू मैनेजिंग डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है, यस अ कंपनी कैन गिव लोन टू इट्स, सॉरी नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे जीपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस को लोन दिया जा सकता है, बिकॉज दिस प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई टू सच प्राइवेट कंपनी लोन टू डायरेक्टर्स में, वरना प्रॉब्लम हो जाता। क्योंकि जीपी कंस्ट्रक्शंस इज अ फर्म इन विच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अ पार्टनर। ऐसी कंपनी को तो रेस्ट्रिक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 185 सबसेक्शन 1, बट क्योंकि एग्जेम्पशंस में ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, कंपनी कैन गिव लोन टू एनी कंपनी, क्योंकि उसको 185 विल नॉट अप्लाई, ठीक है, सेक्शन 185 विल नॉट अप्लाई, राइट। सो ये थे अपने टोटल 50 क्वेश्चंस व्हिच वी डिड, आई, ठीक है। इसका पीडीएफ अटैच्ड होगा क्वेश्चंस का, सेल्फ प्रैक्टिस अगर तुम्हें करना हो तो कर सकते हो, इट विल बी यूजफुल फॉर यू, ओके। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।